নমস্কাৰ 24 লাইভ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ পুনৰ এটা নিৰ্বাচনী খবৰ। এবাৰ ৰাজনীতিত পুনৰ সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাক্তন IPS আনন্দ মিশ্ৰক আৰু এবাৰ জনসুৰুজ পাৰ্টিৰ জৰিয়তে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত বিহাৰবাসীক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে এবাৰ আনন্দ মিশ্ৰই আৰু উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ বিহাৰলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব কিয়নো কেইবাখনো চৰকাৰে ইতিমধ্যে বিহাৰত তেওঁলোকৰ শাসন কৰিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বিহাৰত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পিছত এবাৰ আনন্দ মিশ্ৰই সমাজৰ হৈ ৰাজ্যৰ হৈ কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিছে আৰু জনসুৰুজ পাৰ্টিৰ জৰিয়তে বিহাৰবাসীৰ মাজত তেওঁ পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি উল্লেখ কৰিছে জনাইছো এই মুহূৰ্তত সবিশেষ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ বিহাৰলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব আনন্দ মিশ্ৰ এবাৰ নীতিশ কুমাৰক চ্যালেঞ্জ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আনন্দ মিশ্ৰক আৰু ইয়াৰ লগতে এবাৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত আনন্দ মিশ্ৰৰ উদাত্ত ভাষণ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদাত্ত কণ্ঠৰে তেওঁ ভাষণ দিছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত আৰু আনন্দ মিশ্ৰই হাজাৰ হাজাৰ জনতাক আশ্বাস প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিহাৰবাসীৰ বাবে তেওঁ আশ্বাস দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো এখন চৰকাৰে বিহাৰৰ বাবে নকৰে কাম বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ হৈ কোনো এখন চৰকাৰে কাম কৰা নাই আৰু জনসুৰুজ পাৰ্টিয়ে পৰিৱৰ্তন আনিব বিহাৰলৈ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁ জনসুৰুজ পাৰ্টিক ৰাইজৰ ওপৰত থকা যি বিশ্বাস বা জনসুৰুজ পাৰ্টিক যাতে ৰাইজে বিশ্বাস কৰে তাৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এনেদৰে ইতিমধ্যে IPS আনন্দ মিশ্ৰই হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত তেওঁ ভাষণ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে নিজৰ সপোন এৰি তেওঁ ৰাজনীতিত যোগদান কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে কিন্তু অসমৰ পৰা তেওঁ বিদায় লৈ নিজৰ যি প্ৰশাসনিক সেৱা সেই প্ৰশাসনিক সেৱালৈ তেওঁ যি অৱদান আগবঢ়াইছিল আৰু নিজৰ তেওঁৰ কৰ্তব্যৰ পৰা তেওঁ বিৰতি লৈ অব্যাহতি লৈ ইতিমধ্যে ৰাজনীতিত যোগদান কৰিবৰ বাবে তেখেতে বিহাৰলৈ গুচি গৈছিল আৰু বিহাৰলৈ গুচি যোৱাৰ পিছতে ইতিমধ্যে IPS আনন্দ মিশ্ৰই তেওঁ টিকটৰ বাবে আবেদন কৰিছিলে আৰু টিকট নোপোৱাৰ ফলত ইতিমধ্যে তেওঁ আন এটা পাৰ্টিত যোগদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু সেই পাৰ্টিটো হৈছে জনসুৰুজ পাৰ্টি আৰু জনসুৰুজ পাৰ্টিৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচন তথা ৰাজনীতিত তেওঁ খুজ পেলাইছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্বাচনী তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে নিৰ্বাচনত নামি পৰিছিলে কিন্তু ইয়াৰ পিছত ফলাফল যদিও আশাব্যঞ্জক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নহল কিন্তু পুনৰবাৰ এবাৰ ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে IPS আনন্দ মিশ্ৰক ইতিমধ্যে তেওঁ যেহেতু IPS হিচাপে পৰিচিত সকলো ৰাইজৰ মাজত ইতিমধ্যে হাজাৰ হাজাৰ তেওঁৰ অনুৰাগী থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এইগৰাকী আনন্দ মিশ্ৰই এবাৰ পুনৰ তেওঁৰ যি সমষ্টি তথা জনসুৰুজ পাৰ্টিৰ জৰিয়তে আনন্দ মিশ্ৰই হাজাৰ হাজাৰ জনতাক আশ্বাস প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ সন্মুখত তেওঁ ভাষণ প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে জনসুৰুজ পাৰ্টিক যদি বিহাৰবাসীয়ে তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে তেওঁলোকে যদি আস্থা ৰাখে এই দলৰ ওপৰত এই পাৰ্টিৰ ওপৰত তেনেহলে এই চৰকাৰৰ গঠন কৰাৰ পিছত বা এই দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে বিহাৰলৈ পৰিৱৰ্তন আনিব আনন্দ মিশ্ৰই উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁ বিহাৰৰ বিভিন্ন ঠাইসমূহ তেওঁ ঘূৰিছে আৰু বিহাৰৰ জনতাই আচলতে কি তেওঁলোকে সমস্যাত ভুগিছে বা কেনে ধৰণৰ সমস্যাত তেওঁলোকে এতিয়াও ভুগি আছে সেই সমস্যাসমূহৰ ওপৰত তেওঁ উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেদৰে কাম কৰিলে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সেই সমস্যাসমূহৰ সমাধান কৰিব পাৰি সেই বিষয়টো ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে মন দি শুনিছে এতিয়া IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ সেই কথা সেই ভাষণ শুনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁ উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আগৰ যিসমূহ চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰসমূহে সাধাৰণ ৰাইজৰ হৈ কোনো ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে কৰা নাই কিন্তু যদি জনসুৰুজ পাৰ্টিক বিশ্বাস কৰে বিহাৰবাসীয়ে তেনেহলে জনসুৰুজ পাৰ্টিয়ে এবাৰ ৰাইজৰ মাজত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত IPS আনন্দ মিশ্ৰৰ কিছু মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য আমি আপোনালোকক শুনাইছো ऐसी क्या चीज होगी तो जो लोग यहाँ प्रशासन समझते हैं देखिए बिहार 1960 के दशक तक करीब करीब एक सबसे बेहतरीन प्रशासित राज्यों में हुआ करता था और आज के दिन का प्रशासन देखिए तो सबसे पीछे की तरफ आने वाले प्रशासन में है ऐसा हाल कि अगर लोग यहाँ आना चाहिए तो देखिए यहाँ जाम लग जाता है मैं यहाँ जब बिहार घूम रहा था मोटरसाइकिल लेके अभी कुछ दिन पहले तो एक चीज देखा कि पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है पूरा का पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है ये जाम सिर्फ रास्ते का नहीं ये जाम दिमाग में भी लगा हुआ है तो इसी जाम को छुड़ाने का प्रयास है जनसुराज पार्टी और आप सबसे ये निवेदन है कि अगर आपको सच में ये लगता है कि बिहार का भविष्य बदलना चाहिए अगर आपको सच में ये लगता है कि हाँ जिस बिहार का गौरव गाथा इतिहास के किताबों में लिखा है वो गौरव गाथा आप उस वैसे ही एक गौरवशील बिहार में जीना चाहते हैं
आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही एक बेहतर बिहार में जिए, तो अब ये वक्त बैठने का नहीं, अब ये वक्त बैठ के पीछे भाषण सुनने का भी नहीं, अपने मोबाइल पे खाली लाइक और कमेंट करने का नहीं, ये वक्त है जमीन पर उतरने का, ये वक्त है अपनी बात को समक्ष रखने का। लेकिन इस बात को अगर रखने जाए तो दुर्दशा आपने देखे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाते हैं। आपकी बात को सुनने और सुनाने के लिए ये प्रशासन अभी तक उस लेवल पे तैयार नहीं हो पाई है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पहले जनसुराज की सरकार आनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारे जो प्रशासन में भी भाई बहन है, उनके लिए भी ये सौगात होगा कि बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे जॉब किया जाए, कैसे नौकरी की जाए, कि सही में आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में उभर कर आए। आप जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का सही आपका मूल्यांकन किया जाए और आपको उसका सही तौर पे उसके लिए आपको शाबाशी भी मिल सके। और एक बात है जो कि मैं लगातार अभी जब जा रहा था मोटरसाइकिल यात्रा पर, तो सामने आई कि जहां जाए तो वहां पता चलता था कि भाई यहाँ पे टीचर्स, स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पता चलता था कि भैया हॉस्पिटल तो है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सब असुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान है, ये ठीक कैसे हो सकता है, और ये सारे ठीक करने की व्यवस्था बन रही है। जब जनसुराज पार्टी का मैनिफेस्टो ये जारी किया जाएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से आपके मुद्दों की बात, आप जिस व्यवस्था से परेशान है कि आज जमीन आपके पास लिखा हुआ है लेकिन उस जमीन का मालिकाना जो है आप उसको लेके श्योर नहीं हो सकते। आप आज के दिन में लगभग हर घर किसी ना किसी केस में, किसी मुकदमे में फंसा हुआ है। आप आज जाकर अपना ही संपत्ति आप सुरक्षित नहीं रख सकते। हाल यह है कि जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने बाहर गए हैं, जो लोग बाहर काम करने गए हैं, उनको ट्रेन पकड़ के भाग के वापस आना पड़ता है कि भाई हमारा जमीन कोई हथिया रहा है, कोई पड़ोस में मारपीट लग गया है। तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी लगा दी गई, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो अगर जनसुराज का सरकार आता है, आप ये देखिए कि जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, उस जगह पे जिम्मेदारी आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने ली है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको भाग के आना पड़ता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी एक व्यवस्था बने कि सरकार अपने लोगों की जिम्मेदारी ले। एक और बात कह के आपको फूड फॉर थॉट, सोचने के लिए छोड़ के जाता हूं कि जितने जमीनी विवाद होते हैं, जितने भी जमीनी विवाद होते हैं, आपको नहीं लगता कि उस विवाद में सरकार को भी एक रिस्पोंडेंट बनना चाहिए? जमीनी विवाद दो लोगों में नहीं होता, उसका खतियान खाता, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो तो सरकार रखती है। आपका जमीनी विवाद का जो रिकॉर्ड सरकार रखती है, तो अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी होता है, अगर उनके रिकॉर्ड के गड़बड़ी से आपको केस मुकदमे में जाना पड़ता है, तो उसमें एक केस का एक नाम, तो उसमें सरकार का भी उसमें नाम होना चाहिए केस में। ऐसी व्यवस्था कैसे सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके किया जा सकता है? क्या आप सोच रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो भाई क्या बदलेगा? ऐसी क्या चीज होगी? तो जो लोग यहाँ प्रशासन समझते हैं, देखिए बिहार 1960 के दशक तक करीब करीब एक सबसे बेहतरीन प्रशासित राज्यों में हुआ करता था, और आज के दिन का प्रशासन देखिए तो सबसे पीछे की तरफ आने वाले प्रशासन में है। ऐसा हाल कि अगर लोग यहाँ आना चाहिए तो देखिए यहाँ जाम लग जाता है। मैं यहाँ जब बिहार घूम रहा था मोटरसाइकिल लेके भी अभी कुछ दिन पहले, तो एक चीज देखा कि पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है, पूरा का पूरा बिहार जाम में फंसा हुआ है। ये जाम सिर्फ रास्ते का नहीं, ये जाम दिमाग में भी लगा हुआ है। तो इसी जाम को छुड़ाने का प्रयास है जनसुराज पार्टी। और आप सबसे ये निवेदन है कि अगर आपको सच में ये लगता है कि बिहार का भविष्य बदलना चाहिए, अगर आपको सच में ये लगता है कि हाँ, जिस बिहार का गौरव गाथा इतिहास के किताबों में लिखा है, वो गौरव गाथा आप उस वैसे ही एक गौरवशील बिहार में जीना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ऐसे ही एक बेहतर बिहार में जिए, तो अब ये वक्त बैठने का नहीं, अब ये वक्त बैठ के पीछे भाषण सुनने का भी नहीं, अपने मोबाइल पे खाली लाइक और कमेंट करने का नहीं, ये वक्त है जमीन पर उतरने का,
ये वक्त है अपनी बात को समक्ष रखने का। लेकिन इस बात को अगर रखने जाए तो दुर्दशा आपने देखे हैं, दौड़ा दौड़ा के पीटे जाते हैं। आपकी बात को सुनने और सुनाने के लिए ये प्रशासन अभी तक उस लेवल पे तैयार नहीं हो पाई है। तो इस प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे बेहतर किया जाए, इसके लिए पहले जनसुराज की सरकार आनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो हमारे जो प्रशासन में भी भाई बहन है, उनके लिए भी ये सौगात होगा कि बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे जॉब किया जाए, कैसे नौकरी की जाए कि सही में आपका जो जॉब है, जो नौकरी है, वो सिर्फ एक नौकरी नहीं, एक सेवा के रूप में उभर कर आए। आप जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का सही आपका मूल्यांकन किया जाए और आपको उसका सही तौर पे उसके लिए आपको शाबाशी भी मिल सके। और एक बात है जो कि मैं लगातार अभी जब जा रहा था मोटरसाइकिल यात्रा पर तो सामने आई कि जहां जाए तो वहां पता चलता था कि भाई यहाँ पे टीचर्स, स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पता चलता था कि भैया हॉस्पिटल तो है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी सब असुविधाओं के लिए बहुत सारे ऐसे प्लान है, ये ठीक कैसे हो सकता है, और ये सारे ठीक करने की व्यवस्था बन रही है। जब जनसुराज पार्टी का मैनिफेस्टो ये जारी किया जाएगा, आप देखिएगा कि किस तरह से आपके मुद्दों की बात, आप जिस व्यवस्था से परेशान है कि आज जमीन आपके पास लिखा हुआ है लेकिन उस जमीन का मालिकाना जो है आप उसको लेके श्योर नहीं हो सकते। आप आज के दिन में लगभग हर घर किसी ना किसी केस में, किसी मुकदमे में फंसा हुआ है। आप आज जाकर अपना ही संपत्ति आप सुरक्षित नहीं रख सकते। हाल यह है कि जो लड़के पढ़ाई लिखाई करने बाहर गए हैं, जो लोग बाहर काम करने गए हैं, उनको ट्रेन पकड़ के भाग के वापस आना पड़ता है कि भाई हमारा जमीन कोई हथिया रहा है, कोई पड़ोस में मारपीट लग गया है। तो भाई ये जिम्मेदारी आपकी लगा दी गई, जबकि ये जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। तो अगर जनसुराज का सरकार आता है, आप ये देखिए कि जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए उस जगह पे जिम्मेदारी आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों ने ली है। आप अगर कहीं नौकरी करते हैं तो आपको भाग के आना पड़ता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो ऐसी एक व्यवस्था बने कि सरकार अपने लोगों की जिम्मेदारी ले। एक और बात कह के आपको फूड फॉर थॉट सोचने के लिए छोड़ के जाता हूं कि जितने जमीनी विवाद होते हैं, आपको नहीं लगता कि उस विवाद में सरकार को भी एक रिस्पोंडेंट बनना चाहिए? जमीनी विवाद दो लोगों में नहीं होता, उसका खतियान खाता, उसका रिकॉर्ड कौन रखता है? वो तो सरकार रखती है। आपका जमीनी विवाद का जो रिकॉर्ड सरकार रखती है, तो अगर रिकॉर्ड में गड़बड़ी होता है, अगर उनके रिकॉर्ड के गड़बड़ी से आपको केस मुकदमे में जाना पड़ता है, तो उसमें एक केस का एक नाम, तो उसमें सरकार का भी उसमें नाम होना चाहिए केस में। ऐसी व्यवस्था कैसे सिविल प्रोसीजर कोड को चेंज करके किया जा सकता है?